स्टडी प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ। बोले हाथ ही क्यों लाना चाहिए ना, हम ना प्रेजेंट। नाउ वी विल सी चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस। फर्स्ट टेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, आपको बार बार बताया गया है कि देयर विल बी वर्ब इन ऑलवेज इन फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होती है। हाउ टू रिकॉग्नाइज द सेंटेंसेस में वर्ब इज मेन वर्ड। The teacher said to me, you always tell a lie. This is present indefinite. How can you say this is present indefinite? Because there is tell. Tell is in the first form. That's why this is present indefinite. Now we'll change this sentence in indirect narration. Teacher told me. Said to, if said has to, अगर said के पास to है तो ही हम said को told में बदलते हैं, अदरवाइज नहीं बदलते। तो said will be changed in told. Told me और to का प्रयोग कभी नहीं करते, बार बार स्टूडेंट्स यूज to। told के साथ to का प्रयोग कभी नहीं होता है। told me that this is assertive sentence, we are removing inverted comma, that will be used. I always told a lie, केवल इतना ही करना है। you have to change verb in second form. tell will be changed in told. told a lie. Now your narration is ready there. The lady said to the girl, do you live in this house? This is interrogative sentence. Again and again I told you there are two types of interrogatives. First one starts with auxiliaries. Auxiliaries means do, does, did, has, have, had, is, are, am, was, were, etc. etc. Do you live in this house? This is present indefinite and starting with auxiliary. This is interrogative sentence. How it will be changed? Now see. The lady asked the girl, inverted comma will be removed by if या whether. दोनों में से कोई एक आप यूज कर सकती हैं, वन ऑफ दीज टू। दोनों एक साथ नहीं, दोनों में से कोई एक। बार बार ये बताया जाता है आपको। एंड नाउ थोड़ी देर के लिए आप डू, डज, डिड, वाज, वर को छोड़ देंगे। यू हैव नॉट कंसीडर ऑक्सिलरी वर्ब। आप तुरंत उसके बाद यू हैव टू कंसीडर योर सब्जेक्ट। अपने सब्जेक्ट को देखेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएंगे। यू, योर सब्जेक्ट इज इन सेकेंड पर्सन। अगेन एंड अगेन आई टोल्ड यू सेकेंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को देखना होगा। ऑब्जेक्ट इज गर्ल, गर्ल मीन्स शी। यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू गर्ल, इट विल बी शी। इफ या वेदर के आगे चलते हैं तो शी। नाउ विल टॉक अबाउट वर्ब। लिव विल बी चेंज इन लिव्ड, because present indefinite is changed into past indefinite and past indefinite always take verb in second form. It means it will be lived. This will be changed in that house. In this way you have changed this sentence, interrogative sentence, and indirect narration using if, whether and your rule according to sentence. Now see another sentence. She said to me, are you? She asked me. Said to है, to के पास, said के पास to है, but this is question. It will always change in ask. जब भी question होगा हमेशा said को हम ask में ही बदलते हैं. Inverted comma will be removed by if. R को थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे. And now talk about you. You will be changed according to me, because second person always change according to O. Sorry, object. You will be changed according to me, it will be I. R will change in was. Well, in this way the sentence will be, she asked me if I was well. Now next sentence see, I said to the guest, are you comfortable here? This is direct narration. You have to change it. Indirect narration. I asked the guest. क्वेश्चन होगा तो सेट टू हमेशा आस्क में ही बदलेगा. देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन टू यू. एंड इन्वर्टेड कॉमा विल बी रिमूव्ड बाय इफ. थोड़ी देर के लिए हम इसमें हमेशा वर्ब को छोड़ देते हैं. डोंट कंसीडर इट. यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू गेस्ट. गेस्ट इज, गेस्ट में भी शी एंड में भी ही, कुछ भी यूज कर सकते हैं. सी और में ही, दोनों में से अकॉर्डिंग टू योर विल. ही, आर विल बी चेंज in was.
and comfortable as it is. In this way, the sentence is, I asked the guest if he was comfortable there. Next sentence is it time to leave for the station? He said. कई बार क्या होता है, he said आगे होता है, he said पीछे भी हो सकता है, और sometimes it cut the sentences and given in the middle part of the sentence. कई बार तो sentence को कट करके बीच में भी दे देता है, तो आप कहीं भी हो आप उसको हमेशा स्टार्टिंग में ही लिखेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में. He asked it. it के बाद अब हम is के बात करेंगे तो is आर एम को हम हमेशा was verb में ही बदलते हैं. तो इज इट के अकॉर्डिंग वॉज हो जाएगा. और टाइम टू लीव फॉर द स्टेशन देयर विल बी नो चेंज, नथिंग टू चेंज हियर. द बॉस सेड आर द मैन रेडी. द बॉस आस्क्ड इफ मैन वर रेडी. मैन प्लूरल में है इसलिए इसके साथ वर लगेगा और बाकी कुछ चेंज करने जैसा नहीं है. इट विल बी रिटन एज इट इज. अरुणा सेड विमला डू यू नो नगमाज एड्रेस. सेट के पास कुछ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन है ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है. कई बार इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वोकेटिव केस में दे देता है ऑब्जेक्ट, उसे हम बाहर निकालते हैं. अरुणा आस्क विमला. अब यहाँ से हमारा सेंटेंस शुरू हुआ जहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ है. डू यू से डू यू नो नगमाज एड्रेस. यहाँ पे हम कनेक्टिव यूज़ करेंगे. ऑक्सिलरीज में हमेशा कनेक्टिव इफ़ या वेदर यूज़ होता है. वन ऑफ दीज टू यू कैन यूज़ एनी वन what you likes. if she knew क्यों, do को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं. she will be changed according to बिमला. बिमला she है तो she और no will be new. सेकेंड फॉर्म no का जो सेकेंड फॉर्म है न्यू है नगमाज एड्रेस. अब हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स पे आते हैं. ये तो ऑक्सिलरीज थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में. अब क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे चेंज करते हैं. जया सेड टू रमेश वेयर डू यू लिव. This is question, this is interrogative. Jaya asked. चाहे auxiliaries को interrogative हो, it may be question word interrogative. Ask said to को हमेशा ask में ही बदलना है. Jaya asked Ramesh where, and question word works itself like conjunction. There is no need of any other conjunction. क्वेश्चन वर्ड तो खुद ही कंजक्शन का काम करते हैं, किसी और कंजक्शन की आवश्यकता आपको नहीं है. तो वेयर तो खुद ही कंजक्शन का काम करेगा. और डू डिड डज को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं. यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू रमेश बिकॉज सेकेंड पर्सन ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. देन इट विल बी चेंज इन ही. रमेश इज ही and live will be lived. Verb will always be in second form. As you know, I have told you again and again in the class that it will be changed in second form. Present indefinite will be changed in past indefinite, and present indefinite take verb in first form, and only one tense is past indefinite which always take verb in second form. That's why it will be lived. I hope you understood. We will see some more examples here. Now let's continue. Now next sentence is who are you and where are you coming from. देखते हैं इसको. हाँ. Who are you and where are you coming from, he said. Now see how it will be changed. He said कहीं भी दिया रहा, कई बार सेंटेंस को इंटरप्ट कर देता है, कई बार बीच में देता है, कई बार पहले ही देता है. लेकिन आपको इतना समझ आ गया होगा कि ये हमेशा पहले ही लिखा जाएगा. और सेड को हम किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में. आस्क्ड में क्यों, बिकॉज दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और आपको बार बार बताया गया क्लास में कि जितने क्वेश्चन वर्ड्स कंटेनिंग सेंटेंसेस होते हैं इनमें हमें देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ कनेक्टिव वर्ड्स बिकॉज दे वर्क इटसेल्फ लाइक कंजक्शन. वो खुद ही कंजक्शन का काम करते हैं. तो हु को हम एसेट्रस लिख देंगे. आर को थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, यू की बात करेंगे. यू को हम यहाँ पे थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट पता नहीं चल रहा है. जब कोई ऑब्जेक्ट पता नहीं चलता है तो हम उसको थर्ड पर्सन में चेंज करते हैं. तो ये थर्ड पर्सन में ही हो जाएगा. थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, ही सी इट. नोट इट डाउन इन योर कॉपी.
ही। अब आर की बात करते हैं, चूँकि आपको पता है कि आर विल बी चेंज इन वॉज बिकॉज इट इज़ इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, इट विल बी चेंज इन पास्ट इंडेफिनिट, तो आर इज आर एम विल बी चेंज इन वॉज वर्ड। आर मीन्स ही के साथ वॉज लेंगे। एंड वेयर, दिस सेंटेंस इज कनेक्टेड विद एंड और वेयर, जहाँ वहीं रहेगा, फिर थोड़ी देर के लिए आर को भूल जाएंगे और यू की बात करेंगे। कहने का क्या मतलब मेरे, अगेन एंड अगेन आई टोल्ड यू, क्वेश्चन वर्ड्स के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर क्वेश्चन वर्ड्स के तुरंत बाद हम वर्ब लेंगे तो इट विल अगेन बी एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दैट्स व्हाई यू हैव टू फॉरगेट for some time your verb. Now talk about your subject. You will be changed in he. It will be changed in third person because object is not clear here. He and are will be changed in was. Coming from. तो आप लोगों ने देखा कि कैसे ये चेंज हो रहा। नाउ इट इज असर्टिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड तो खुद ही कंजक्शन का काम करते हैं, इसलिए आप कोई भी कंजक्शन नहीं लेंगी। यहाँ हु होगा, यू जब कोई क्लियर नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, तो यू विल बी चेंज इन ही और ही के साथ आर को हम वॉज में बदलेंगे। वर के बाद थोड़ी देर के लिए वर्ब को भूल जाएंगे। यू की बात करते हैं, यू विल बी चेंज इन ही। Coming from, जो ऐसे as it is, there is no change in further in the sentence. I hope you understood. And now we'll see another sentence. Who are you and what do you want? The villager asked the traveler. इस सेंटेंस में भी सेम पैटर्न अप्लाई होगा। द विलेजर आस्क्ड द ट्रेवलर, आपको पता है उसको हम आगे लाएंगे। द विलेजर आस्क्ड द ट्रेवलर। अब यहाँ आएंगे, हु आर यू। हु खुद ही कंजक्शन का काम कर रहा है, इट इज वर्किंग लाइक कंजक्शन, देयर इज नो नीड ऑफ एनी अदर कनेक्टिव। आर को थोड़ी देर के लिए भूलते हैं एंड वी विल टॉक अबाउट यू। यू को हम ही में ही चेंज करेंगे, इट विल बी चेंज इन थर्ड पर्सन बिकॉज देयर इज नो क्लियर ऑब्जेक्ट। एंड आर विल बी चेंज इन वॉज एंड वॉट as it is working like conjunction, it is connecting the sentence. Do will be left, do को छोड़ देंगे, you को फिर हम ही में चेंज करेंगे। and he wanted, want will be changed in wanted because verb will be in second form. यहाँ हम full stop लगाएंगे because now this is assertive sentence, this is not a interrogative sentence. Now see another sentence. What is going there? The teacher said to a student, why are you late? The teacher why are you late? Said to को हम ask में बदलेंगे because this is interrogative sentence. The teacher asked the student. ask के साथ to नहीं लगाएंगे, बार बार आप लोग लगा देती हैं, it is wrong. Why? हमें कोई सी अदर कंजक्शन की जरूरत नहीं है because question words work like conjunction. You will be changed according to a student. सेकेंड पर्सन को हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, तो स्टूडेंट, स्टूडेंट में भी सी या मे बी ही, बोथ कुछ भी हो सकता है। दिस इज कॉमन जेंडर नाउन ही एंड आर विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस वॉज लेट।
There is no another change further in the sentence. The teacher asked the student why he was late. Now see another sentence. Next sentence is, the teacher said, "Where is your father? Has he gone out?" This is first sentence have question word and second sentence has auxiliary, but both are interrogative. Now see how to change it in an indirect narration. The teacher asked. क्वेश्चन में हमेशा सेट को हम आस्क में ही चेंज करेंगे. अब यहाँ दूसरा कोई कंजक्शन यू कांट टेक. वेयर इज वर्किंग लाइक कंजक्शन. वेयर इज को थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे. योर फादर को हम चेंज करेंगे हिज फादर, क्योंकि यहाँ कोई दूसरा ऑब्जेक्ट पता नहीं चल रहा. ही में चेंज होगा एंड ही विल बी चेंज इन हिज फादर वॉज. अब इसको हम फिर जोड़ेंगे सेंटेंस को एंड लेंगे. एंड सी फर्दर आस्क्ड. फर्दर आस्क मीन्स उसने फिर पूछा, आगे पूछा. आस्क्ड इफ ही हैज को बदलेंगे हैड में. गॉन आउट. द टीचर आस्क्ड वेयर हिज फादर वॉज. इसको वाज में बदला जा रहा है. योर फादर को हिज फादर. एंड फर्दर आस्क मीन्स फिर पूछा. इफ ही हैड गॉन आउट. नाउ दिस सेंटेंस इज रेडी. दिस इज एनफ फॉर टुडे. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट टू यू. यहाँ पे बार बार आपको एक चीज़ समझाया जाता है कि जब क्वेश्चन वर्ड्स ले लेते हैं हम, आफ्टर क्वेश्चन वर्ड्स देयर विल बी सब्जेक्ट. This is a structure of simple sentence, subject, verb, object. Interrogative में question words and verb. Question words के तुरंत बाद verb आ जाए. Question word के तुरंत बाद आपने subject ले लिया, तो this is assertive sentence and question words are connecting the sentences. This is difference between narration, interrogative and assertive. I hope you understood. Enjoy at home online classes. And exercise 1 and 2 you have to do in fair copy. Make your fair copy and do all the work from excellent book. You have to do exercise 1 and exercise 2. I hope you have book, because this book is also prescribed in first year. Same book will be continued. There is no change in the course of intermediate. There will be change in course of first year, I hope. But there is no hope to change anything, because we are suffering from corona. It will be